اسماعیل نے ایک مقصد حاصل کر لیا تھا۔ 10 لاکھ ڈالر کی خطی رقم اس کے پاس پہنچ گئی تھی۔ اس رقم سے اس نے 15-20 ہزار ڈالر اپنے خرچے کے لیے علیحدہ کر کے باقی رقم بینک کے لاکر میں رکھ دی۔ شو روم سے ایک گزارے لائق سوزوکی کار خریدنے کے بعد وہ کرائے کے مکان کی تلاش میں نکل پڑا۔ اسے ایک ایسے مکان کی تلاش تھی جو عام آبادی سے ہٹ کر ہو۔ 1-2 پراپرٹی ڈیلروں سے ملاقات کے بعد اسے اپنے مطلب کا مکان مل گیا۔ ضروری سامان خریدنے اور مکان میں شفٹ کرتے کرتے اس کو پورا دن گزر گیا اور وہ رات گئے ہی واپس آ سکا۔ دن کا کھانا اسی مصروفیات کی نظر ہو گیا تھا۔ ہوٹل سے 2 بندوں کا کھانا پیک کروا کے وہ اس مکان میں پہنچا جہاں ہنا قید تھی۔ صبح کے ناشتے کے بعد اس غریب کو کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا تھا، لیکن یہ بات اسماعیل کے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا نہ کر سکی تھی۔ وہ فاضل خان کی بیٹی کو ایک ناگن سے بڑھ کر حیثیت دینے کو تیار نہیں تھا۔ وہ سارے دن کی قید تھی اور اسماعیل جانتا تھا کہ کھانے پینے کے علاوہ بھی انسان کی کئی ایسی ضروریات ہوتی ہیں جنہیں انسان ایک حد تک ہی برداشت کر سکتا ہے۔ اس لیے کھانا گرم کرنے سے پہلے وہ اسے واش روم لے گیا۔ بعد میں ٹائم کی کمی کی وجہ سے اسے بھی ہنا کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا پڑا۔ اس دن اس نے پہلے کی نسبت زیادہ کھانا کھایا اور اس کی وجہ شاید دن بھر کی بھوک یا قید کی ذلت کے مانوس ہونا تھا۔ کھانے کے بعد اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا، کیا ڈیڈی نے تاوان کی رقم ادا کر دی؟ اسماعیل بولا، ہاں۔ وہ بولی تو؟ وہ شاید اپنی رہائی کا پوچھنے لگی تھی کہ اسماعیل کی بھرپور نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے تو اسے آگے کچھ کہنے کی جرت نہ کر سکی۔ اسماعیل بولا، تو یہ کہ مس ہنا فاضل علی خان، تمہارے باپ سے اب تک کافی وصولیاں رہتی ہیں اور یہ رقم پہلی وصولی تھی۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا، لیکن اس کی آنکھوں میں ابھرنے والی نمی اسماعیل سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ اسے ہلکا سا افسوس ہوا، مگر جلد ہی اس نے خود پر قابو پا لیا۔ فاضل خان سے انتقام لینے کے لیے اسے ساری اخلاقیات پس پشت ڈالنی تھی۔ جب وہ کچن میں برتن رکھ کے لوٹا تو وہ ایک مرتبہ پھر جرت کرتے ہوئے مستفسر ہوئی، آپ کی دشمنی تو ڈیڈی کے ساتھ ہے، میرا اس میں کیا قصور ہے؟ اسماعیل بولا، یہ تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ وہ روح تک کانپ گئی تھی۔ اسماعیل بولا، اب ہم نے یہاں سے جانا ہے، اس لیے تیرا بے ہوش ہونا ضروری ہے۔ اسماعیل نے اسے اسپرے سے بے ہوش کیا اور پھر بازوؤں میں اٹھا کر سوزوکی کی ڈگی میں منتقل کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد مکان کو تالا لگائے وہ نئے مکان کی طرف اڑا جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں اپنی گڑیا ریحانہ کی آخری چیخیں گونج رہی تھیں، وہی چیخیں جو کبھی بھی اس کے دماغ سے محو نہیں ہو سکی تھی۔ ماں باپ کی موت نے اسے اتنا ڈسٹرب نہیں کیا تھا جتنا بہن کے ساتھ ہونے والی زیادتی نے اس کی کایا پلٹی تھی، اور اب وہ اس بات کا بڑا بھیانک انتقام فاضل علی خان سے لینے والا تھا۔ میلا کچیلا لباس، تھکا چہرہ، سرخ آنکھیں جن سے بے آرامی اور حزن و ملال ٹپک رہا تھا، اکڑی گردن جس میں خم آ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ وہی سیٹھ فاضل علی خان ہے جو کبھی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا۔ نورل، تم نے اپنی آنکھوں سے شیرے کی لاش دیکھی ہے؟ اس نے سامنے کھڑے ملازم سے پوچھا۔ وہ بولا، جی سیٹھ صاحب، اس کے ماتھے میں گولی لگی ہے، اس کے بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ سیٹھ فاضل بولا، جب خبیث کا مطالبہ ہم نے پورا کر دیا تھا تو پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ ملازم نے کہا، کیا کہہ سکتے ہیں سیٹھ صاحب؟ سیٹھ بولا، کہیں شیر نے تیزی دکھانے کی کوشش تو نہیں کی؟ ملازم بولا، آپ کی اجازت کے بغیر وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ سیٹھ بولا، اس کا فون بھی نہیں آیا، حالانکہ اب تک اسے بیبی کو رہا کر دینا چاہیے تھا۔ ملازم بولا، شاید وہ مزید رقم ہتھیانے کے چکر میں ہو سیٹھ صاحب۔ سیٹھ بولا، رقم کا کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس کے حوالے منہ مانگی رقم کریں گے، البتہ بیبی کی واپسی کے بعد دیکھنا کہ اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اسی رقم سے اس کا مقبرہ نہ تعمیر کیا تو سیٹھ فاضل نہ کہنا، بہت تکلیف دی ہے اس حرام کے نطفے نے، اس نے ہماری بیبی کو رلایا ہے، اور بیبی کے ایک ایک آنسو کے بدلے اس گروہ کے ہر فرد کو 10-10 بار آگ میں جلاؤں گا، بس ایک دفعہ بیبی خیریت سے واپس آ جائے۔ ملازم نے کہا، سیٹھ صاحب، اس کی کوئی شناخت نہیں ہے ہمارے پاس، ورنہ ہم اسے پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالتے۔ اپنے آدمیوں کی دوڑ دھوپ تو جاری ہے مگر کوئی منزل سامنے نہیں ہے۔ لے دے کے چھوٹی بیبی رہ جاتی ہیں، لیکن اسے بھی تو بلیک میلر نے کہیں چھپا کر رکھا ہوگا، وہ کھلے عام تو نہیں پھر رہی ہوں گی کہ ہمیں نظر آ جائیں۔ سیٹھ فاضل بولا، اچھا پولیس والے کیا کہہ رہے ہیں؟ شیرو کی لاش کب تک ہمارے حوالے کریں گے؟ ملازم نے کہا، آج اس کا پوسٹ مارٹم ہے، اس کے بعد ہی ہمارے حوالے کریں گے۔ سیٹھ نے کہا، گاڑی تو لے آئے تھے نا؟ وہ بولا، جی سیٹھ صاحب۔ نورل کی بات جاری تھی کہ سیٹھ فاضل کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے بے صبری سے موبائل اسکرین پہ نگاہ ڈالی۔ پولیس ایس پی کا نام پڑھ کر بے دلی سے کال اٹینڈ کی۔ السلام علیکم سیٹھ صاحب۔ وعلیکم السلام ایس پی صاحب، کیا نئی تازہ ہے؟ دیکھ لیں، تیسرا دن ہے اور ہماری گڑیا تلاش نہیں کی جا سکی۔ آپ پھر گلہ کرتے ہیں کہ ہم پولیس کی کارکردگی
کارکردگی کو नाक़िस कहते हैं। एसपी ने कहा, सेठ साहब, ब्लैकमेलर ज्यादा अरसे तक कानून की नजरों में धूल नहीं झोंक सकेगा। इंशाल्लाह जल्द ही वो कानून के आहनी शिकंजे में होगा, लेकिन उसके लिए हमें आपके ताउन की भी जरूरत पड़ती है। जब आप ही हमें हालात से लाइल्म रखेंगे तो हमारी कारकर्दगी खाक सामने आएगी। सेठ बोला, मैं समझा नहीं एसपी साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? एसपी बोला, देखें सेठ साहब, आपके एक अहम बंदे की लाश कल गाड़ी में मिली है और उसे कत्ल करने वाला एक लंबा तड़ंगा जवान था जिसे एक दो राहगीरों ने तुम्हारे आदमी पे गोली चलाते देखा है। वो उसे तो कुछ न कह सके, अलबत्ता चौक पे खड़े सिपाही को ये इत्तला पहुंचा दी, बशमूल मुजरिम के हुलिये के, जो वो सरसरी नजर से देख सके थे। फिर जो बंदा आपकी गाड़ी लेके जा रहा था और पुलिस के नाके से फरार हुआ, वो भी एक लंबा तड़ंगा नौजवान ही था। उसका हुलिया तुम्हारे आदमी शेरे के कातिल से बहुत मिलता है, बल्कि मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि वो यही था। अब लगे हाथों ये भी सुन लें कि जिस जगह से आपकी बेटी अगवा हुई, वहाँ मौके पे हमें एक कार भी खड़ी मिली जिसमें एक तालिबे इल्म बेहोश पड़ा हुआ था। उससे पूछगिछ करने पे यही पता चला कि उससे एक लंबे तड़ंगे जवान ने यूनिवर्सिटी गेट पर लिफ्ट मांगी और फिर स्प्रे करके उसे बेहोश कर दिया। मेरी मुराद उसी यूनिवर्सिटी से है जिसमें आपकी बेटी ज़ेरे तालीम है। नतीजा क्या निकला? नंबर 1 के इन सब वाकयात के पीछे एक ही जवान है, या अगर ज्यादा हैं तो उनका हुलिया मिलता जुलता है। दूसरा, वो आपसे राब्ता करके तावान या जो भी उसका मुतालबा है आप तक पहुंचा चुका है, जिसके मुताल्लिक पुलिस बिल्कुल लाइल्म है। जब पुलिस को इस तरह लाइल्म रखा जाएगा तो वो खाक कारकर्दगी दिखा सकेगी। एसपी का तज्जिया 100% दुरुस्त था। फाजिल खान को मुदाफियाना रवैया अपनाना पड़ा। वो बोला, एसपी साहब, आप सही कह रहे हैं, मगर मैं मजबूर था। ब्लैकमेलर ने मुझे वाज़े तौर पर धमकी दी थी कि अगर मैंने पुलिस का सहारा लेने की कोशिश की तो वो मेरी बेटी को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा सकता है, और ये बात तो आप जानते हैं कि एक बेटी का बाप रिस्क नहीं ले सकता। एसपी ने कहा, हमारी इन्हीं कम हिम्मतियों की वजह से जराइम और मुजरिमों की तादाद में रोज अफजूं तरक्की हो रही है। मुजरिम कोई जादूगर तो नहीं है कि उसे ये पता चल जाए कि आप पुलिस को खबरदार कर चुके हैं। सेठ बोला, इसी बात का तो रोना है एसपी साहब। बकौल मुजरिम उसके पुलिस में काफी मुखबर मौजूद है, और उसकी बात से मैं इसलिए मुत्तफिक हूँ कि इस मामले में पुलिस का महकमा खासा बदनाम है। हर आदमी एसपी सिकंदर हयात नहीं हो सकता। एसपी बोला, देखें सेठ साहब, एसपी सिकंदर हयात ही नहीं, कई पुलिस वाले आपको इससे भी ज्यादा ईमानदार मिलेंगे। और जहां तक ब्लैकमेलर की धमकी का ताल्लुक है, अगर कोई ऐसी बात हुई भी थी तो आप मुझे सारी तफसील से आगाह कर देते। मैं सिविल कपड़ों में चंद ऐसे पुलिस वालों को मुतय्यन कर देता जो बिकाऊ माल नहीं होते। उसके साथ साथ उनका ऐसे कामों से निमटने का तजुर्बा भी काफी ज्यादा है। सेठ फाजिल ने कहा, मुझे अपनी गलती तस्लीम है एसपी साहब, आइंदा मैं आपके मशवरे के बगैर कोई कदम नहीं उठाऊंगा। एसपी बोला, इसी में हमारी बेहतरी होगी सेठ साहब, और ये भी याद रखना कि ऐसे मुजरिम उमूमी तौर पर बहुत से गलत दावे करते हैं। अब उस ब्लैकमेलर ने भी आपके सामने किसी बड़े ग्रोह का सरबराह होने का दावा किया होगा, अपने मातहतों की तादाद दर्जनों बताई होगी। हालांकि जहां तक मेरा अंदाजा है ये एक ही आदमी है जो बार बार सामने आ रहा है। बहरहाल जो हुआ सो हुआ, अब इंशाल्लाह ताउन रहा तो बच नहीं सकेगा। सेठ फाजिल बोला, इंशाल्लाह। शायद जिंदगी में पहली मर्तबा उसने इंशाल्लाह कहा था। सच कहते हैं, अल्लाह ताला की याद मुसीबत में ही आती है। फोन बंद करके वो सोच में खो गया। ऐसा कौन सा दुश्मन था जो एसपी साहब के बताए हुए हुलिये पर पूरा उतर सकता था? काफी सोचो विचार के बाद उसके जहन में इस्माइल शाह का नाम गूंजा, मगर उसके साथ ही उसे ये सोच तर्क करनी पड़ी कि इस्माइल शाह में इतनी जुर्रत नहीं थी। अगर वो इंतकाम लेने के जोश में ऐसा करने की जुर्रत कर भी लेता तब भी फाजिल खान उसे कोई अहमियत देने को तैयार नहीं था। अचानक वो सामने खड़े नूरल से मुखातिब हुआ। नूरल, इस्माइल शाह को जानते हो? नूरल ने जहन पर जोर देते हुए कहा, इस्माइल शाह? सेठ साहब, कहीं ये वही तो नहीं जो हवालात से फरार हो गया था? सेठ ने कहा, बिल्कुल वही है। क्या वो ये काम कर सकता है? नूरल बोला, नहीं सेठ साहब, उसमें इतनी जुर्रत कहाँ, वो तो शायद कहीं मर खप गया हो। सेठ फाजिल ने उसकी तायद की, मेरा भी यही अंदाजा है, लेकिन इसके बावजूद उसके दिल में एक खलिश सी थी जिसकी तौजीह करने से वो कासिर था। सर, शिकार पहुंच गया है। रणधीर मोबाइल फोन पर मेजर रोहित से मुखातिब था। गुड, क्या हमारा मतलूबा आदमी भी साथ है? रणधीर बोला, वो तो सबसे आगे है और इस टाइम मकान के अंदर है। रणधीर ने दूरबीन आंखों से लगाकर मकान के सहन में मोहतात अंदाज में चलते आतिफ को देखकर कहा। वो उस वक्त एक 3 मंजिला फ्लैट की छत पर लेटा दूरबीन के जरिए उस मकान की निगरानी कर रहा था। बाकी आदमी उसने मुख्तलिफ अतराफ में बखेर दिए थे ताकि वो जिस जानिब से वापस जाए उनका ताकुब किया जा सके। मेजर रोहित ने कहा,
बाहर उन्होंने लाजिमन अपने आदमी निगरानी के लिए छोड़े होंगे। वो बोला सर ऐसा ही है। रोहित ने पूछा कितने आदमी हैं? वो बोला 2 सामने से मकान में घुसे हैं और 2 अकबी साइड से, जबकि अतराफ में एक बंदा निगरानी के लिए बाहर छोड़ा है। रोहित ने खुद कलामी करते हुए कहा काफी समझदार नजर आ रहा है ये आतिफ। रणधीर ने उसकी तायद करते हुए राय दी जी सर, काफी खतरनाक दिखाई दे रहा है। रोहित बोला क्या बहुत ही खौफनाक शक्ल है? उसका लहजा मजाहिया था। रणधीर बोला नहीं सर, खतरनाक से मेरी मुराद खौफनाक शबाहत नहीं है। शक्ल से तो कॉलेज यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म दिखाई देता है, अलबत्ता उसका अंदाज जाहिर करता है कि काफी मुश्किल टारगेट साबित होगा। रोहित बोला ये तो जब उसका सामना मेजर रोहित से होगा तो मालूम होगा कि कितने पानी में है। रणधीर खुशामदाना लहजे में बोला नहीं सर, आपके सामने तो तिफल मकतब ही है। रोहित बोला रणधीर मैं जुर्रतमंद दुश्मन को पसंद करता हूँ। वो बोला आपका बड़ापन है सर, बहरहाल अगला कदम क्या होना चाहिए? मेजर रोहित ने कहा इन्हें छेड़ने की जरूरत नहीं है, बस ताकुब करके आतिफ का ठिकाना मालूम कर लो, बाद में उठवा लेंगे। इस वक्त ये काफी तादाद में है, ये ना हो दौरान एक्शन कोई अपना बंदा जाया हो जाए। रणधीर बोला सिर्फ आतिफ का ठिकाना मालूम करना है सर? वो बोला हाँ सिर्फ उसी का, बकाया का पता उसी से चल जाएगा। रणधीर बोला ठीक है सर, फिर 2 मोटरसाइकिल सवार उसके ताकुब में रवाना कर देता हूँ। यूं भी उनकी वापसी के रास्तों पे मैंने पहले से 2 मोटरसाइकिल सवार मुतय्यन कर दिए हैं। मेजर रोहित ने कहा हाँ 2 ही काफी हैं, ज्यादा रश बनाने की जरूरत नहीं, और जैसे ही इसका एड्रेस मालूम हो मुझे इत्तला कर देना। मैं इस वक्त अड्डे नंबर 3 में मौजूद हूँ। उसने अपनी रिहाइश गाह का कोड नाम बताते हुए कहा। रणधीर बोला ओके सर, मजीद कुछ? रोहित ने कहा नहीं, कुछ हुआ तो फोन कर दूंगा, गुड बाय। राब्ता खत्म होते ही रणधीर ने एक मर्तबा फिर दूरबीन आंखों से लगाकर उनका जायजा लिया। वो जख्मी फैसल को गाड़ी में मुंतकिल कर चुके थे। आतिफ अभी तक मकान के अंदर ही था। उसके बाहर आते ही वो सब वहाँ से चल पड़े। उनके जाने की समत का तायुन होते ही उसने एक नंबर मिलाकर कहा करण तुम्हारी जानिब आ रहे हैं, तुम्हारे साथ दूसरा कौन है? वो बोला महेश है सर। रणधीर ने कहा ठीक है, तुम इनका ताकुब करना और ध्यान रहे हमें सिर्फ आतिफ का एड्रेस दरकार है। करण ने पूछा आतिफ कौन सा है सर? रणधीर बोला जो तमाम से कम उम्र नजर आ रहा है, ब्लैक कार को ड्राइव करने वाला वही है। महेश ने कहा सर अगर मौका मिले तो उड़ा दें। रणधीर बोला बेवकूफ, अगर इन्हें मारना होता तो मकान में ही बड़ी आसानी से खत्म किया जा सकता था। महेश ने कहा सॉरी सर, मैंने सोचा शायद इसे हलाक करना है। रणधीर बोला अच्छा अब एहतियात से इनका ताकुब करना है, हल्की सी कोताही भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये कहने की जरूरत तो नहीं कि इस आदमी का एड्रेस रोहित साहब को दरकार है, जो नंबर 3 में बड़ी बेसब्री से तुम्हारी इत्तला के मुंतजिर है। महेश बोला इसका मतलब है मेजर साहब को बराह रास्त रिपोर्ट देनी होगी। रणधीर बोला उन्हें बराह रास्त भी आगाह कर सकते हो, मैं भी मुंतजिर हूँगा, मुझे भी बता सकते हो, जिसे दिल चाहे बता देना। महेश ने कहा भगवान ने चाहा तो आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा सर, और मुझे कारें नजर आ गई हैं। रणधीर ने कहा ओके गुड बाय और एहतियात से। ये कहते हुए उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। सर एक मोटरसाइकिल सवार काफी देर से हमारे ताक़ुब में है। आतिफ के कानों में इमरान की आवाज गूंजी। वो बोला मुझे पहले ही शक था कि ऐसा होगा, बहरहाल अनजान बनकर चलते रहो, मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ। ये कहकर आतिफ ने मोबाइल निकाला और किसी का नंबर डायल करने लगा। राब्ता होते ही वो बोला हेलो अख्तर, आतिफ बोल रहा हूँ। अख्तर मौतबाना लहजे में बोला सर आपका नंबर है मेरे पास। वो बोला इस वक्त कहाँ हो? अख्तर ने कहा नेशनल स्टेडियम के करीब हूँ सर, एयरपोर्ट जा रहा हूँ। आतिफ ने पूछा अकेले हो? वो बोला सगीर है साथ, बाइक पर हो? वो बोला जी सर दोनों के पास बाइक है। आतिफ ने कहा अच्छा यूं करो कि सगीर को साथ लेकर शाह फैसल पर आ जाओ, हम शाह फैसल कॉलोनी की तरफ आ रहे हैं। ब्लैक और करीम कलर की करोला है, दोनों कारें तुम्हारी देखी भाली हैं। एक मोटरसाइकिल सवार हमारे ताक़ुब में है, तुम दोनों ने उसका ताक़ुब करना है। मोटरसाइकिल सवार 2 या 3 भी हो सकते हैं, इसी तरह कोई दूसरी गाड़ी भी हमारे ताक़ुब में हो सकती है। तुम दोनों ने खूब एहतियात से उनकी निगरानी करनी है और कोई कार्रवाई करने से पहले मुझसे मशवरा जरूर करना। अख्तर ने पूछा सर आपका रुख किस तरफ है? आतिफ ने कहा हम शाह फैसल कॉलोनी की तरफ से आ रहे हैं और जिना हॉस्पिटल जाएंगे। अख्तर ने कहा ठीक है सर, हम पहुंच गए। आतिफ बोला ओके खुदा हाफिज। वायरलेस कनेक्शन की वजह से वो सब एक दूसरे की बातों को बाआसानी सुन सकते थे, इसलिए जैसे ही आतिफ ने राब्ता मुनक़ता किया उसे इमरान की आवाज सुनाई दी। सर आपका अंदाजा दुरुस्त है, एक दूसरा मोटरसाइकिल भी नजर आ रहा है। आतिफ ने पूछा पहले वाला भी मौजूद है या वो चला गया? इमरान बोला दोनों दिखाई दे रहे हैं सर, कभी एक आगे हो जाता है कभी दूसरा। आतिफ ने कहा हाँ ऐसा ही होगा, इनकी कोशिश है कि
हमें ताक़ुब की खबर ना हो। इमरान ने कहा, वैसे सर बात कुछ उलट सी नहीं हो गई कि दुश्मन मुल्क के जासूस सरकारी एजेंसियों के आदमियों का ताक़ुब कर रहे हैं। आतिफ ने कहा, कभी कभी ऐसा भी होता है, असल बात का पता तो फैसल के होश में आने के बाद चलेगा। अलबत्ता मेरा अंदाजा यही है कि इन्हें हम में से किसी बंदे की जरूरत है। इरफान फौरन बोला, वो फिर आप ही हो सकते हैं। आतिफ मुबहम लहजे में बोला, शायद। इसी दौरान वो हॉस्पिटल में दाखिल हो गए थे। दोनों ताक़ुब बरदार भी उनके पीछे ही अंदर घुस आए। इमरान ने कहा, अगर इरफान का अंदाजा दुरुस्त है तो आपको यहाँ रुकने की बजाय आगे जाना चाहिए। आतिफ फौरी तौर पर इमरान से मुत्तफिक हो गया। फैसल को गाड़ी से उतारकर उसने गाड़ी वापस मोड़ ली। आतिफ ने कहा, तुम सब यहीं रहना, सिर्फ अख्तर और सगीर हमारे पीछे आएंगे। आतिफ हिदायत जारी करता हुआ हॉस्पिटल से बाहर आ गया। वापसी के लिए मुड़ते वक्त उसे दोनों दुश्मन नजर आ गए थे। एक सरसरी सी निगाह उन पे डाल के वो गाड़ी हॉस्पिटल से बाहर ले आया। इतनी रात गए भी पहली घंटी पे उसका फोन अटेंड कर लिया गया था। हेलो। फाजिल खान की आवाज में छुपा इस्तराब उससे मख्फी न रह सका। सेठ कैसा है रे? वो छूटते ही बोला, तूने शेरे को मार के अच्छा नहीं किया। अगवाकार बोला, छोड़ो सेठ, क्या फजूल बातें लेके बैठ गए हो, अपनी बेटी का हाल नहीं पूछोगे? सेठ फाजिल बोला, उसे तो वादे के मुताबिक आपने रिहा करना था, आपकी मुंह मांगी रकम मैंने अदा कर दी है। अगवाकार बोला, मैंने कब उसके रिहा करने का वादा किया था? याद करो सेठ, मैंने सिर्फ ये कहा था कि उसके बाद मजीद रकम का मुतालबा नहीं करूंगा और अपने इस वादे पर कायम हूँ। सेठ गड़बड़ा गया, क्या 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 मतलब? अगवाकार बोला, मतलब वाज़ेह है सेठ, अभी तक तो तुम्हारे साथ काफी हिसाब किताब रहता है। सेठ ने कहा, मैं समझा नहीं मिस्टर, आप अपनी बात की वजाहत करें। अगवाकार बोला, इसीलिए तो फोन किया था सेठ साहब, ताकि तुम्हें कुछ भूली बिसरी बातें याद दिला दूं। फिदवी को इस्माइल शाह गाजी कहते हैं, पहचाना? सेठ के मुंह से निकला, मगर तुम? इस्माइल बोला, क्या हुआ सेठ साहब, तुम्हारी जबान क्यों अटकने लगी? मेरे जैसे बंदे तो आपके हारियों और मज़ारों से भी गए गुजरे होते हैं, फिर ये घबराहट कैसी? सेठ फाजिल बोला, शाह जी मैं अपने रवैये पर माजरत खा हूँ। इस्माइल ने कहा, अरे वाह, इतना बड़ा करम मुझ पे कि इज्जत माब सेठ फाजिल अली खान साहब बकलम खुद मुझसे माफी के खास्तगार हैं। सेठ फाजिल बोला, देखो शाह जी, हम मिल बैठ के अपने दरमियान मौजूद गलत फहमियां खत्म कर सकते हैं। इस्माइल बोला, देखो मिस्टर बनावटी सेठ, हमारे दरमियान कोई गलत फहमी नहीं, जो बात है बड़ी वाज़ेह है, इसलिए ये ड्रामेबाजी बंद करो और सिर्फ मेरी बात सुनो। तुमने मेरे घर की जो कीमत लगाई थी वो निहायत हकीर थी, हालांकि उसकी कीमत इतनी बनती थी जितनी मैंने अभी वसूल की है। ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात सुनो, मुझे अपनी माँ का कातिल दरकार है। वो कौन था और इस टाइम कहाँ मिलेगा? फाजिल खान थूक निकलता हुआ बोला, उन दोनों को आप कार धमाके में कत्ल कर चुके हैं। इस्माइल ने कहा, झूठ नहीं चलेगा सेठ साहब। सेठ बोला, खुदा की कसम ये सच है। इस्माइल बोला, खुदा का नाम मत लो सेठ साहब, तुम्हारे गलीज मुंह से ये पाकीज़ा नाम बहुत ऊपरा ऊपरा लगता है। सेठ बोला, शाह जी मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारी माँ को कत्ल करने वाले दोनों हलाक हो चुके हैं। इस्माइल बोला, यकीन तो नहीं आ रहा, बहरहाल मजबूरी है। सेठ फाजिल बोला, शाह जी अब तो गुड़िया को छोड़ दो, आपने अपना बदला ले लिया है, इसके अलावा भी अगर कोई जुर्माना है तो मैं हर कीमत अदा करने को तैयार हूँ। फाजिल अली खान के लहजे में अजीब किस्म की इनकिसारी और लजाजत दराई थी। इस्माइल बोला, इसके मुताल्लिक कल बात होगी सेठ साहब, फिलहाल इतना याद रखना कि पुलिस के साथ राब्ता करने या किसी को मेरे मुताल्लिक इत्तला देने से तेरी बेटी की सख्तियों में इजाफा होगा। मुझे पुराना इस्माइल समझने की गलती मत करना, आज मैं अकेला नहीं हूँ, तुमसे भी बड़ा गुरोह मेरी पुश्त पर है। गो मैं उसका सरबराह तो नहीं हूँ, लेकिन उसके बड़े का मंजूर नजर हूँ और वो मेरी कोई बात भी रद्द नहीं करता। मेरा ख्याल है आपकी तसल्ली के लिए इतना ही काफी होगा। सेठ फाजिल बोला, शाह जी मैंने पहले भी पुलिस को इत्तला नहीं की थी, अब भी मेरा इरादा ऐसा नहीं है। इस्माइल ने कहा, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। उसके साथ ही इस्माइल ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। फाजिल ने जल्दी से उसे दोबारा रिंग किया, मगर नंबर उसे बंद मिला। फाजिल खान सर पकड़ कर सोफे पर बैठ गया। सूरत हाल उसकी तवक्को से भी खराब थी। उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि इस्माइल शाह, जो उसके नजदीक किसी कीड़े से भी ज्यादा बेबस और मजबूर था, उससे ऐसा इंतकाम लेगा। उसे कोई राह सुझाई नहीं दे रही थी। उसका सबसे कीमती आदमी इस्माइल पहले हल्ले में हलाक कर चुका था। अब उसे ऐसा कोई दिखाई नहीं देता था जिससे वो मशवरा ही कर लेता। उसका एसपी से राब्ते का इरादा डांवाडोल हो चुका था, क्योंकि इस्माइल के मुताल्लिक इत्तला देने से लाजिमन पिछली बातें ज़ेरे गौर आती जो उसके हक में बेहतर नहीं थी। डेवी से मदद मांगने में उसकी सुबकी थी। काफी गौर करने पे भी जब उसके जहन में कोई तरकीब न आई तो उसने मजबूरन नींद की गोलियों की शीशी उठाई और इकट्ठी 4-5 गोलियां निगल कर
बिस्तर पर लंबा हो गया। शायद थोड़े आराम के बाद वो कुछ बेहतर फैसला करने के काबिल हो पाता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।